Hi everyone, welcome to the RoboBites Fitness, Wellness and Lifestyle Solutions from Gurgaon, India. Today we are going to be talking about genetics, right? Yes. So soon the audience is going to join in. In the meantime, let's introduce us. I'm Samara. I'm a tarot reader, spiritual healer, life coach, and a corporate trainer. And this is Rahul, who is a fitness coach, special population expert, anabolic coach, and a nutritionist. Thank you so much, Moin. Good evening. And okay, so we have people who have joined in. Guys, please share this feed. Good evening to everybody. This feed is not about tarot card reading As or usual. any Reiki. Yeah, this feed is all about genetics, health and fitness. Yes, Moin. We are coming after a long time. एक्चुअली यार टाइम नहीं मिल पाता है हमें इन चीज़ों के लिए लाइव के लिए क्योंकि शेड्यूल काफ़ी ऑक्यूपाइड है तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आया जाए चाहे वो फिटनेस से कि फिटनेस पे लाइव हो या फिर टैरो एंड रेकी से जुड़े हुए कोई क्वेश्चंस हो Right. तो बाकी आप सभी के क्वेश्चन पिंग आते रहते हैं डीएम आते रहते हैं ये कब लाइव आएंगे देख के भी अच्छा लगता है सो सॉरी लाइव नहीं आ पाते Yes, in the meantime, please guys help us out. And we soon, coming next week, midweek, I think Wednesday, we'll be doing a travel live. yes most And probably yes yes, and then again, I think on Sunday also we'll be live. So we are going to cover a lot of things, especially when it is related to tarot, which will be about general sun science and काफी सारी चीजें we are लेके आ रहे हैं related to tarot and spiritual healing remedies. We are going to be planning to do other sessions also in which we provide services with us. So going forward, I'd like to know if you guys can hear us properly. Please let us know if you can hear us clearly. And please share this feed in a few groups. like our page if you are watching this feed तो सेकेंडली मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि ये सेशन हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डालने वाला है और एज यूजुअल ये फेसबुक पे तो रहेगा ही रहेगा Right. ठीक है तो आप इसको अगर किसी का कोई क्वेश्चन स्किप होता है या फिर जेनेटिक से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है वो यूट्यूब पे देख सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पे भी अपडेट करने वाले हैं या फिर Right. यहाँ पे फीड पे भी देख सकते हैं तो हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे ऑडियंस के लिए इनफैक्ट हमारे पास इनफ ऑडियंस भी है अभी देखने के लिए किसी का Right. कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मैं जैसे ही अपने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करूंगा या कुछ भी इंफॉर्मेशन दूंगा देन आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा Right. In fact, we leave it to the audience to share the feed. In fact, we're not sharing the feed also much today. We're leaving up to you. If you would like to help us out, please share the feed. And let's start off with the session. So, Rahul, I would like to know first of all, in a layman's language, in a common man's language, genetics होते क्या हैं? सी अभी अगर इसको मैं साइंटिफिक टर्म में बताऊं तो काफी डीप जाना पड़ेगा मैं एक लेमन लैंग्वेज में ही बात करता हूं जेनेटिक्स कुछ लोगों ने तो सुने भी नहीं होते हैं जेनेटिक्स होते हैं कि मतलब एक एग्जांपल दूं तो मैं अगर मेरी हाइट 6 फीट है और मेरे सामने जो भी कोई देख रहा है मुझे उसकी 5'5" है या 5'4" है तो ये हमें कुदरत ने दी हुई चीजें हैं तो जेनेटिक्स ने जीन ने हमें ये दिया है हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी जेनेटिक्स उन्हीं सभी के जेनेटिक्स हमारे होते 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 हम तक पहुंचते हैं ठीक है तो किसी ना किसी पे हमारी हाइट जाती है हमारा फेस किसी से मैच करता है ठीक है तो जेनेटिक्स वहां से आते हैं ठीक है कुदरत ने दिया हुआ गिफ्ट है एक तरह से ठीक है जिसको हम जेनेटिक्स भी कहते हैं दुनिया भर के फेसेस हैं दुनिया भर के लोगों की हाइट है सबकी बॉडी अलग अलग है किसी के भी सेम नहीं मिलेंगे सिमिलर मिलते हैं ये सेम नहीं डिट्टो नहीं होंगे Right. तो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स ने आपको क्या दिया है और कैसे है Right. So that is in layman's term what is genetics, right? So we also mentioned at one point in time that it's a blessing also in a way, right? बिल्कुल So please let us know how do you think genetics can be a blessing to you? आपके खुद के genes आपको लिए किस तरह से आपको bless करते हैं या
के क्या एडवांटेजेस हैं? सी अभी गॉड, आप गॉड लगा सकते हो, हमारे पेरेंट्स लगा सकते हो, किसी को भी लगा सकते हो जिन्होंने हमें ये जेनेटिक्स दिए हैं, जिनके थ्रू हमारे में ये जेनेटिक्स आए हैं। और जेनेटिक्स ये जरूरी नहीं है मॉम डैड से ही आए, नाना की तरफ से भी आ सकते हैं, नाना के भी आ सकते हैं, क्योंकि वहां से चलते हुए हमारे मॉम में, हमारे डैड में वो जेनेटिक्स वहां से एक तरह से अपने आप को मेमोरी होती है ना, वो रखते हैं अपने। ठीक है, तो वो मेरे बच्चों में मेरे दादा के भी जेनेटिक्स आ सकते हैं, क्योंकि वहीं से मैं वो एक प्लेन है बनती हुई आ रही है, चेन है बनती हुई आ रही है। ठीक है, तो अभी ब्लेसिंग में इस तरह से कहूंगा कि अगर किसी का रंग बहुत गोरा है, कुछों को लगता है गोरा रंग बहुत अच्छा है, तो ये एक तरह की ब्लेसिंग है। कुछों को लगता है हाइट ज्यादा अच्छी होना अच्छी बात है, तो ये भी एक ब्लेसिंग है। हर किसी को किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी तौर से ब्लेसिंग मिली हुई है थ्रू जेनेटिक्स। ठीक है, तो अगर मेरी हाइट सपोज अगर मेरी 5 फीट रह जाती है, मेरी हाइट नॉर्मली कम रह जाती है, अगर रह जाती है तो वैसे 6 फीट है लेकिन अगर 5 फीट रह जाती है तो इसका मतलब ये नहीं मेरे जेनेटिक्स खराब है, मेरे जेनेटिक्स खराब हैं हाइट में। ऑलमोस्ट 1 फीट बड़े हैं। हाँ, हाइट में मेरे जेनेटिक्स खराब है। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन हो सकता है वो 5 फीट का बंदा दिखने में बहुत सुंदर हो सकता है उसकी आवाज बहुत अच्छी हो, 5 से प्लस हो 5 फीट ना ऑलमोस्ट। तो हो सकता है उसकी आवाज काफी अच्छी हो, उसके एक्टिंग स्किल अच्छे हो, उसका दिमाग बहुत अच्छे बहुत तेज चलता हो। तो ये सारी चीजें जेनेटिक्स देता है हमें। ठीक है, तो जेनेटिक्स की परफॉर्मेंस जितनी अच्छी रहती है उतना अच्छा हम परफॉर्म कर पाते हैं। तो हर किसी को कहीं ना कुछ परफॉर्म करने को मिला हुआ है, जेनेटिक्स एक गिफ्ट है। ठीक है, तो ये कभी मत सोचे कि मेरे जेनेटिक्स खराब है मैं पतला जल्दी नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन ये सोचिए आपके जेनेटिक्स इतने अच्छे हैं कि आप में पतले होने की एबिलिटी है, कुछ में तो होती भी नहीं है। ठीक है, 3-3, 4-4, 5-5 साल चल के उनका क्या बोलते हैं बीएमआर इतना डाउन हो रखा होता है, इतना ड्रॉप हो रखा होता है कि नेचुरली उनकी बॉडी फैट बर्न करना ही शुरू नहीं कर पाती है। जब वो कहीं जाके इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, डीप कैलोरी डेफिसिट पे आते हैं, तब जाके उनकी बॉडी परफॉर्म करना शुरू करती है। राइट, सो दैट यू से इज द ब्लेसिंग बिल्कुल for बिल्कुल us. बिल्कुल। So I also want to know that when you said कि genes का है सारा, so कई बार genetics में there are certain special conditions in people जो hereditary भी आती हैं from generation to a generation. So ऐसी diseases या ऐसी special conditions भी हैं जो बिल्कुल होती है okay. जी, बिल्कुल होती हैं। अभी शायद इस फील्ड पे भी कुछ लोग होंगे जो कि मुझे देख रहे हैं। ठीक है, होता क्या है किसी के फैमिली में ऑलमोस्ट सबको थायराइड है या डायबिटीज है, Right. तो उनके बच्चा जो होता है उसको भी कुछ टाइम बाद डायबिटीज होने लग जाता है, या फिर 18 साल बाद 20 साल बाद। तो एक तरह से जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, मतलब Right. पीढ़ी दर पीढ़ी वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछों को होने लगती है। ठीक है, और एक एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी है। बीमारी भी क्या है, उसमें स्पाइन से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो कि जेनेटिक्स से आती है, जीन से आती है। हम कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन खा लें, लेकिन वो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। तो कुछ ऐसी रहती है। कैंसरस सेल्स जो होते हैं, ठीक है, तो कैंसर होता क्या है एक्चुअली, कैंसर में क्या होता है हमारे सेल्स बनते हैं और मरते रहते हैं, मतलब रीबिल्ड होने के लिए अभी जो बने हैं वो अपने आप डेड होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। तो कैंसर इसमें क्या होता है, जो नए तो बनते हैं लेकिन जो पुराने वो डेड नहीं हो पाते। तो बॉडी जो है हमारी एंटीबॉडी हो जाती है, मतलब एक तरह से हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी के अगेंस्ट चलते हैं, वो सेल्स डेड नहीं होते, वो कैंसरस बनने लगता है। ठीक है, बॉडी खुद को ही खाने लग जाती है, एक तरह से बोलो सिंपल लैंग्वेज में तो। ठीक है, तो ये भी काफी हद तक जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, हर किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने XYZ करा इसलिए कैंसर हुआ, नहीं, जेनेटिक्स की वजह से ज्यादातर कैंसर होता है। सो आई वांट टू नो, ये एक तरह से फिर तो लिमिटेशन भी हुआ है। लिमिटेशन किस बेस पे बोल रहे हो आप? मैं ये कह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ if there are certain genes that I have, that means that my body is capable to do certain things only, right? Genetically. So is that a limitation is what I'm asking, because I see it as a limitation also.
नहीं तो अगर ब्लेसिंग अपनी जगह है बट लिमिटेशन भी आता है यहाँ पे, राइट? मैंने यहाँ पे एक चीज स्टार्टिंग में बताई कि एक चीज जरूरी नहीं है कि पापा से ही जेनेटिक्स आए, हमारे मम्मी से ही आए, हाँ ऊपर हाँ, से भी आते हैं, दादा से भी आते हैं, नाना से भी आते हैं, नाना के नाना दादा जो रहे भी नहीं है उनसे भी आ सकते हैं जेनेटिक्स। तो राइट। अगर आप ये सोच सकते हैं कि मेरी फैमिली में सबको 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 थायराइड होता है या वो कल्चर चलता हुआ है मोटापे वाला, तो आप में भी वैसा रहेगा, और उस जेनेटिक्स की एक प्रॉब्लम सोच के आप उसको ये पकड़ ले कि नहीं ऐसा ही होता है, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, तो ऐसा ही होता है। जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी चेंज हो सकती है। ओके। ठीक है, जरूरी नहीं है उनसे ही जेनेटिक्स आए हैं आप में। हम्म। ठीक है, ऊपर से भी है, ये जरूरी है कि हो सकता है कि आप भी मोटे हो रहे हो। ठीक है, बड़ा ही कॉमन सा, मतलब कॉमन चीज है बड़ा मोटा होना। ठीक है, तो उस टाइम पे होता क्या है, So आप अपनी, obesity is also an example. बिल्कुल बिल्कुल ओबेसिटी एग्जाम्पल हो, तो बड़ा एग्जाम्पल है इनफैक्ट जेनेटिक्स का। ठीक Okay. है, घर में ज्यादातर लोग मोटे हैं, तो आप कोई मोटे लोग अगर देख रहे हो तो बुरा मत मानना, एक एग्जाम्पल ही था। ज्यादातर मोटे लोगों की फैमिली में बच्चा कुछ टाइम बाद मोटा होने लगता है, उसका हम्म। रीजन सिर्फ यही होता है। ठीक है, तो आज आप जो भी, एक एग्जाम्पल देता हूँ बड़ा ही सिंपल सा, मतलब आज मैंने अगर 10 लाख रुपए कमाए और मैं, मेरी XYZ एज हो गई और मैं टाटा बोल गया दुनिया को, तो मेरा जो बेटा है हम्म। उसने कमाए थे 5 लाख, तो मेरे जो 10 लाख है ना वो उसके पास जा रहे हैं, मेरे बच्चे के पास जा रहे हैं, हम्म। प्लस उसके पास 5 लाख है, राइट। तो उसके हो गए 15 लाख। ओके। ठीक है, तो कुछ चीज छोड़ के जा रहा हूं मैं जो कि उसको मिल रही है, कुदरत ने दी है और मैंने दी है। राइट। ठीक है, सो तो मैं अपने आप को बिल्ड कर सकता हूं बेहतर तरीके से। मैंने अपने, कुदरत ने XYZ चीज दी, मैंने अपने आप को बिल्ड इस तरह से किया है कि मैं अपने आने वाली पीढ़ी को भी कुछ दे के जा रहा हूँ। ओके, सो आई थिंक इसमें फिटनेस एंड न्यूट्रिशन का फिर बहुत बड़ा रोल बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। जेनेटिक्स में मैं ये नहीं कह रहा कि जेनेटिक्स के बैरियर को क्रॉस करके चले जाओ, लेकिन जानो तो सही आपके जेनेटिक्स का बैरियर है क्या। सो हाउ टू फाइंड दैट आउट? ठीक है, पहली चीज, अगर आप किसी भी तरह की कोई डिजीज है, कोई आपको फिटनेस से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइक स्पॉन्डिलाइटिस ही है, ठीक है, तो आप उसके लिए एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, हो सकता है वो स्पॉन्डिलाइटिस हील होने लग जाए, या फिर आपके वो हील ना भी हो। ठीक है, जितना पेन में आप रहते हो पेन कम हो जाए। ठीक है, राइट। आपने जब तक अपनी लिमिटेशन जानी नहीं है, एज तक जब तक आप नहीं गए हो ना, तब तक हम ये नहीं कह सकते ये तो ऐसा ही रहेगा। राइट। सो हाउ डू वी फाइंड आउट द एज विद वर्कआउट? जरूरी नहीं है वर्कआउट। ठीक है, अपना सिर्फ वर्कआउट से भी नहीं हो सकता वैसे पॉसिबल। ठीक है, पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ता है। लाइफस्टाइल में होता है हमारे खाने पीने की हैबिट। ठीक है, एक होती है डाइट न्यूट्रिशन, एक होता है लाइफस्टाइल, कि मेरा लाइफस्टाइल ही ऐसा है। तो हम जब कोई भी अगर मुझसे काउंसलिंग लेता है डाइट की या न्यूट्रिशन की, ठीक है, स्पेशल कंडीशन की, तो हम किसी को भी ये नहीं बोलते ये एक तरह की डाइट है, इट्स अ ये लाइफस्टाइल फूड है, ये चेंज। लाइफस्टाइल है। ठीक है, जो कि आपको फॉलो करना ही करना है। Right. ठीक है, And I think 10, that is what the motto of Global Vibes also is: fitness, बिल्कुल। wellness, and lifestyle solutions. So we are giving the ठीक change in lifestyles, how to solve these things. And I think using your genetics to the best of your ability is one of the ways है, to एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली for राइट। lifestyle changes. So ठीक I है। feel that taking care of first thing that you said हम्म। is your food habits. Okay. ठीक है, और एक चीज और बताना चाहूंगा, द रोवा वाइब्स के साथ में एक लाइन और ऐड होती है, फाइंड योर एज। Right. ठीक है, तो आप अपनी एज तक जब तक जा नहीं रहे हो तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके मतलब क्या एबिलिटी है, कि किस किस चीज के केपेबल हो आप। Right. I think this is the first time we've ever brought Find Your Edge on any medium or channel, because whenever you will see the Robovites logo, there's always one line which is written over there, which is Find Your Edge. So that is what this actually means. And I think this session is very apt if you want to define that. So that's how, you can bring changes in your lifestyle and lead a healthier life, right? Hi, Prashant. हाय प्रशांत, हाउ आर यू प्रशांत। ठीक है, And तो होता क्या है, पहली चीज तो आपको अपना फूड हैबिट लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल में एक फूड आ गया, सबसे पहला फूड आ जाता है। ठीक है, और फिर सेकंड आ जाता है आपकी स्लीप, आपकी रेस्ट। right. ठीक है, रेस्ट से जुड़ी हुई चीजें, लोग होते हैं बहुत ज्यादा मेंटली अपने आप को काम करते रहते हैं, फिजिकली अपने आप को काम मतलब इतना ज्यादा एंगेज रखते हैं, इतना बिजी रहते हैं। ठीक है, Right. तो वो भी एक
कहीं ना कहीं जाके आपकी लाइफस्टाइल को हिट करता है। करेक्ट। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि आप उस बिजी लाइफ में से टाइम अपने लिए निकालिए, अपनी हेल्थ के लिए निकालिए, फिटनेस के लिए निकालिए, फैमिली के लिए निकालिए। ठीक है, तो चीज़ें जहाँ 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 लेफ्ट राइट होती रहेगी, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाओगे आप। कभी एक चीज़ देखो, जो रोड पे जब गाड़ियाँ चलती है तो उसमें एक कर्व बने रहते हैं इस तरह से। तो गवर्नमेंट चाहे तो सीधा रोड भी बना सकती है, एब्सोल्युटली। बिल्कुल सीधा ही बना सकती है। वो कर्व थोड़े से इसलिए दिए होते हैं, बेसिकली लाइट कर्व दिए होते हैं ताकि आपकी आंखें खुली रहे। ठीक है, आपको नींद ना आए, आपका एक तरह लेफ्ट राइट माइंड चलता रहे। राइट। ठीक उसी तरह आपकी लाइफ जो सीधी सीधी चल रही है ना, उसमें थोड़ा कर्व, लेफ्ट एंड राइट होना ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। राइट। ठीक है, तो वो भी आपकी लाइफस्टाइल में ही आता है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रखें, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखें अपनी। जरूरी नहीं है जिम जाए। ठीक है, सुबह थोड़ी सी भी रनिंग कर ली, स्क्वाट्स कर लिए, वार्म अप कर लिया, योगा कर लिया, कोई भी XYZ सेशन अगर आप मतलब एक्सरसाइज का कोई भी किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, पिलाटेस जैसी चीजें हो गई, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वेट ट्रेनिंग जितनी अच्छी है, लेकिन एटलीस्ट कुछ करो, कुछ तो करो। ना करने से बहुत ज्यादा अच्छा है कुछ भी करना। ठीक है, तो कुछ भी करना ये ज्यादा बेटर है। ओके। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना डे, किस तरह से हम अपना शेड्यूल करते हैं। ओके। ठीक है, हमारा खाना पीना हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, मेंटल वेलनेस हो गई, डे किस तरह से शेड्यूल करते हैं। सुबह से रात तक हम इस तरह से डे शेड्यूल कर सकते हैं जिसमें कि हमारा मेंटल, हमारा फिजिकल, हमारा जॉब, वेल्थ, ये सारी चीजें मतलब जुड़ी रहें। सिर्फ आप मनी माइंडेड होके पैसे कमाने पे ही रहेंगे तो भी आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो सकता है। करेक्ट। ठीक है, आप पैसा जरूर कमा सकते हैं लेकिन अपनी हेल्थ बेटर नहीं कर सकते हैं उससे। ठीक है, मेंटल वेलनेस के लिए बेटर नहीं कर सकते, बेटरमेंट नहीं है वो आपके लिए। तो ये सारी चीजें मिलके कहीं एक लाइफस्टाइल बनता है। तो अपना लाइफस्टाइल सुधारो पहले, अगर जेनेटिक्स को और ब्लेस करना चाहते हो तो। राइट। ठीक है, आगे जाके तभी वो चीजें आपको मिलने वाली हैं, आपके बच्चों को मिलने वाली है, आपकी पीढ़ियां चेंज होने वाली हैं उन चीजों से। So I think with all of these points, you're trying to say that there is a way to break the limitation barrier. ऐसा तो नहीं है क्योंकि लिमिटेशन लोगों को पता ही नहीं होती है। I'm saying once they understand कि this is their edge, हम्म, right? Then ऐसा वैसे होता नहीं है कि कोई अपनी एज तक पहुंच जाए। ठीक है, okay. हर कोई उसेन बोल्ट नहीं होता है। ठीक है, अपनी एज पता चला लगा ले। ठीक है, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं होता है। ये दोनों भी बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। सचिन तेंदुलकर मतलब नॉर्मल जो बैट्समैन है, वो होता क्या है, जब बैटिंग करते हैं तो बैटिंग करते टाइम वो देखते हैं बॉलर, Sorry. ठीक है, बॉलर किस तरह से बॉलिंग करा रहा है वो उस पर नजर रखते हैं। ठीक है, उस पर नजर रखते हैं और वो जब वो बॉल डालता है तो बॉल का जब टप्पा पड़ता है फिर स्विंग होती है, तो सचिन तेंदुलकर क्या करता है, जब बंदे के हाथ में बॉल आती है ना, उसका विजन इतना स्ट्रांग होता है कि जब बंदा रनिंग कर रहा है उसके एक्शन से पता लग जाता है उसको किस पेस पे बॉल डालने वाला है और कहाँ इसका स्विंग आएगा, कितना टर्न आएगा। मतलब इतना एक्टिव माइंड जिसकी कोई हद नहीं। विराट कोहली जैसे पहले ही पता चल जाता है कि यार ये बॉल डालेगा, यहाँ गिरेगी और ऐसे ऐसे मैं मारूंगा। ठीक है, इस तरह से मुझे हिट लेना है, इस तरह से ऑफ निकालना है, इस तरह से रन लेना है, तो पहले ही वो एक तरह से गेज कर लेते हैं उस चीज को। ठीक है, तो ये कैसे जीन में, जेनेटिक्स में, या ट्रेनिंग करके इस चीज में बेटर जरूर हो सकते हो लेकिन उनसे ऊपर नहीं जा सकते। Right. So what I'm trying to understand here is that when you're talking about these limitations, that when you find your edge, when you find key, this is your breaking point. So I think ये पूरी in a way it is a journey. ये पूरी एक जर्नी है just to find out कि हाँ, this is what you can do with your body, this is what you can do with your fitness. Like when you have mentioned the points here, then I want you to recap the points like one by one. First thing that you talked about was the food habits that people have to take care of if they have certain limitations. Some limitations they might be aware of, like thyroid अगर किसी को है या obesity problem हो गया, all of these things which are genetics या hereditary उसे बोलते हैं.
So when they know about all this, then they know what kind of food habits they should have, right? That is the first point. Second, you talked about workouts, correct? जी. Right. And then please list the points so that it's easy for us. वर्कआउट हो गया, उसके बाद अपना डे शेड्यूल किस तरह से करते हैं हम, ठीक है, Yes. वो हो गया अपनी मेंटल वेलनेस के लिए। सिर्फ एक चीज कर रहे हो, वो चीज ना करके लेफ्ट राइट और भी चीजें देख के अपने आप को सोशल रख के, कि कोरोना में ज्यादा सोशल नहीं होना, Social फिजिकली distancing सोशल नहीं is होना a है। physical process. So otherwise you can be social, and I feel like फिटनेस एंड वेलनेस का मतलब इंक्लूडिंग योर न्यूट्रिशन एंड फूड हैबिट्स का ख्याल आप किसी भी सिचुएशन में रख सकते हो। और राइट, हाय गैरी। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच। Gary, I'm a tarot reader. This is Rahul, who's a आई एम अ fitness फिटनेस कोच, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, and we're talking about genetics. So if you have a question, we would love to answer that for you. And then we were talking about the entire lifestyle change that you spoke about. बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ जेनेटिक्स मैटर कर सकता है। आप अपने जेनेटिक्स की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए या फिर ढूंढने के लिए कि मेरे जेनेटिक्स कितने अच्छे हैं, तो वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा जहां तक जेनेटिक्स ने आपको ब्लेस किया है। Right. ठीक है, तो इस बात को कह के टाल नहीं सकते हो कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरे जेनेटिक्स ऐसे हैं। ठीक है, आप वर्कआउट करने से पहले, मतलब एग्जाम देने से पहले आप ये बोल रहे हो कि नहीं यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, Right. एग्जाम में बैठने से पहले बोल रहे हो। So can you tell us about the kind of services we offer in terms of lifestyle changes when it is coming from you? What Yes. all that जी। can help us with this? सिर्फ अगर फिटनेस और न्यूट्रिशन के से अगर बेस पे अगर देखो आप, तो सर्विसेज जो हैं ये फिटनेस से जुड़ी हुई ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। ठीक है, सिर्फ सेशन में 1-on-1 सेशन होते हैं, ग्रुप सेशन होते हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो काउंसलिंग ले सकते हैं। सपोज आप कोई न्यूट्रिशन फॉलो करना चाहते हैं, पर XYZ न्यूट्रिशन आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। Right. ठीक है, बार बार लैक ऑफ मोटिवेशन और कुछ न्यूट्रिशन या डाइट में भी प्लान में कुछ इस तरह से गड़बड़े होती हैं या फिर हमारे अकॉर्डिंग नहीं बनी होती, तो जबरदस्ती फॉलो करने से भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला होता है। Right. So what kind of audience can, what kind of people can reach out to you? Anyone. No, I mean for people to list out, or let me actually answer this question here. Please Thank answer. you. So the kind of services that we offer, like we mentioned, online and offline services that we talk about, like fitness sessions जो हम लोग कराते हैं, Zoom meeting हो गया, Google Talk हो गया, or other systems where we can do we do this on video calls. There are group sessions also that happen, or there are couple sessions also, like 2 or 3 people in a group. Now I'm not talking about group in terms of 15-20, because when you talk about personal coaching, so everybody needs a due attention and time, and जिसमें जो workouts हम कराते हैं, that is dependent on the kind of body that you have, right, and the kind of result that you want, and the kind of condition that you're in. It could be a special condition, like जो special conditions इन्होंने बताई हैं, like PCOS, PCOD is also one of the conditions, frozen shoulder के problem हो गया, joints problem हो गया, तो हर एक के लिए एक अलग workout होता है उनकी ability के according, and that is when we try and break the barriers, and that is when we try and push them ahead to see how better that they can do, and that is how we help you find your edge, right? And again, when you talk about the food habits here, now when it comes to nutrition, मतलब diet और nutrition में बहुत बड़ा फर्क है, right? Rahul, would you like to cover that for a minute? सी डाइट और न्यूट्रिशन से हो गया आपका मैक्रो माइक्रो सारी चीज कैलकुलेशन हो गए। ठीक है, आपको गोल स्पेसिफिक डाइट जो होती है, ठीक है, वो बनाना। ठीक है, और सिर्फ डाइट होती है कि किसी तरह की कोई डाइटिशियन ने, हो सकता है न्यूट्रिशन भी ऐसे करते हो, सिर्फ आपके फूड को मैनेज कर दिया है कि आपका XYZ चीज जो आप खा रहे हैं ये इतनी खा लें, इतनी खा लें, इतनी खा लें। तो उसमें क्या होता है, कैलोरीज को हम अप एंड डाउन जरूर कर सकते हैं, वेट गेन वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन आपका जो गोल है उसकी तरफ स्पीड तेज नहीं कर सकते हैं। हम जो भी कुछ खा रहे हैं, अगर वो बेकार मतलब अच्छा ही होता, फिर तो हम उससे मोटे नहीं होते, Right. उससे पतले मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती बॉडी में, डिजीज जो है वो नहीं बढ़ती। And I think that you can cover Preeti's example. I think her genetics also helped us in the diet that she took from us. So on nutrition, she was following. We were giving her weekly diets, which was based on her macro and micronutrients and उनके खुद के weight के और उनके body metabolism के according जो कि हम over a period of time gauge करते. So we used to give her weekly diets,
And then she started, she was just following the diet's normal physical activity, like she was doing running and walking or whatever in the society. She did not have a lot of time. So उन्होंने डाइट बड़ा डिलीजेंटली फॉलो करा. डिलीजेंटली भी मैं ये कहूँगी, वो खुद कहती थी मैंने 60% डाइट फॉलो करता है, जिसमें हम अबाउट 4 to 5 मील्स इन अ डे वी यूज्ड टू गिव. तो कई बार वो होता था 3 मील्स ही ले पाई, 4 मील्स ही ले पाई, कई बार 2 मील्स ले पाई, टाइम नहीं मिला या कुछ और खा लिया. There were cheats. Right. So, for example, we were not putting her on a keto diet. We do give ketogenic diet as well, but ketogenic diet has to be followed very strictly. We were giving her sometimes low carb, high fat diet. Yeah, कई बार you calorie deficit diet, high protein diet. हाँ. So we were week by week basis, depending on the results that she was giving me, we were changing her diet. So sometimes she was on a calorie deficit diet for, let's say, a week, and then next week she was on a high carbs diet as well, right? Especially the time, like अगर उनको फीवर वगैरह हो गया या कुछ मेडिकल कंडीशन होगी, तो ऐसा नहीं कि वो डाइट करना बंद कर देंगी. Because she was going through something, we changed the diet so that it is helpful for her to recover as well. And she was taking that diet. Can you tell us in about, I think, 3 months, what was her? ठीक है. सी अभी उनके अगर कोई वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस मेरे ख्याल से उनका 1 किलो भी नहीं हुआ था पूरी तरह से. ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, टचवुड, उनका 1 किलो भी कम नहीं हुआ. लेकिन अगर कोई इंचेस की बात करें तो उन्होंने अच्छी तरह से डाइट फॉलो नहीं भी करी थी. वो 3 से 4 इंचेस इन 1.5 मंथ में लूज कर चुकी थी. Right. I think she said that she's down 3 dress sizes. हाँ जी, हाँ जी. और फिर उनकी हेल्थ से जुड़ी हुई थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. बीपी का थोड़ा इशू था, वो काफी बेटर हो गया था. उनके फीट, जब वो वॉक करती थी, उनके फीट में मतलब एक तरह का इंड्योरेंस लैक्टिक एसिड बनता था, जिससे जलन होती थी, पेन होता था. ठीक है. उनको धीरे धीरे मैंने एक्सरसाइज डाली, वॉक पे डाला, तो वो पेन भी खत्म हो गया उनका. मतलब ये तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा आउट था. मैं भी एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे भी कि ये भी ठीक हो जाएगा, पर वो उनका ठीक हुआ. Because of her genetics. Again, नॉट ओनली जेनेटिक्स, मतलब उन्होंने मेहनत करी इस चीज पे. ठीक है. इसमें जेनेटिक्स को ये नहीं कह सकते कि जेनेटिक्स बहुत अच्छे थे इसलिए रिजल्ट आया, जेनेटिक्स बहुत खराब थे इसलिए ऐसे हुआ. Not entirely, but I think कुछ ना कुछ हाथ तो जेनेटिक्स का हाथ ये था कि जब उनका वेट लॉस, मतलब इंचेस लॉस हुए, तो इंचेस लॉस में उनका फैट जरूर गया, लेकिन मसल मास भी आया बॉडी पे. ठीक है. तो ये जेनेटिक्स मैटर करता है इसमें. ठीक है. क्योंकि हर किसी का मसल मास ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं होती है, उनका हुआ. Correct. And I think that is what made her most, stronger. In fact, I feel that once I saw her the first time when we went to meet her, and then अभी recently जब उनसे मिले हैं, मैंने we were not able to recognize her because उनका एज में भी बहुत फर्क लग रहा था. Because I remember meeting a middle-aged woman at the start, and later on I'm meeting a very hip individual who is in her late 30s. She was giving that kind of a feel, and she was telling us that how people are responding to me. They're like, "What are you doing?" And she just said that I'm just managing my food habits and taking care of my nutrition. So again, किस तरह का प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स आप अपने डेली इनटेक में डाल रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में डाल रहे हो, ऐसा कोई भी. I think the advantage of being getting a nutritionist on board is because he will manage your weekly diets. Normally मैंने ये देखा डाइटिशियंस, इनफैक्ट हमारे पास अदर केसेस भी आए जो अदर जगह से भी आए हैं, वो एक पूरा महीने का डाइट दे देते हैं, आपको ये खाना है, वो एक चार्ट बना के दे देंगे, अब आप उसको महीने में फॉलो करते रहो. फिर आप उनसे ये पूछो कि मतलब ये डाला क्यों है, इतना प्रोटीन क्यों डाला है, इतना प्रोटीन क्यों नहीं डाला है, तो उसका आंसर ये होता है डाइटिशियन हमें आप नहीं. साइंटिफिक अप्रोच के साथ साथ आप कोई भी डाइट लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, ठीक है, उसको फॉलो कीजिए. ठीक है. ब्लाइंडली मुझे भी फॉलो मत कीजिए. ठीक है. हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, गुड रिसर्च होती है, तो थोड़ा बहुत तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा. आप अपनी हेल्थ के लिए ही कर रहे हैं. Correct. And with that in mind, I think we have covered most of the things. So this is what we offer in terms of lifestyle changes. And if you're looking for wellness, there are the things that we offer, which is spiritual counseling, healing, self-transformation workshops, tarot reading. This is something that I provide. So for that, you can reach out to us as well. Our number is mentioned on the pages on Facebook and Instagram. And you can get in touch with our manager Ritu, who will fix up an appointment with us, and you can get your counseling sessions. And after the counseling session, first counseling session, कोई भी नया client आता है, अभी फिलहाल इस because of the COVID and the rise of cases, we're offering first counseling session absolutely free of charge. So you can get in touch with us for counseling. We'll be happy to help you, whether you take our service or not. Right?
And for more updates and for more hits, please follow our social media pages and also follow us on YouTube. We'll be glad. YouTube पे बहुत ही ज़्यादा frequent activity इस time चल रही है. So we'll be glad if you follow us on YouTube as well. Sooner or later you'll see, keep on seeing something more जो यहाँ से ज़्यादा active इस time वहाँ पर चल रहा है. So we'll see you guys soon, probably this Wednesday with the live tarot read. Right. Thank you so much for coming live on our feed, for joining the session, and thank you for watching us. And we will post in the event section about our next event. So join us there on whichever platform it is. We are not even sure right now कि Facebook पे होगा या Instagram पे होगा. I think most probably it will be on Instagram, but we'll post it in the event section so that you can join us there. Thank you so much for watching, guys. It was lovely to have you here. I hope if you have any questions, please let us know in Messenger or on the YouTube feed, wherever you would like to reach out to us. We'll be more than happy to help you. Have a happy weekend. Let's go. All the best, guys. Take care.